So in the previous class, we have discussed the concept of how to convert the equation of a straight line from general form to a symmetric form. Now the question is, you have to prove that the line 2x plus 3y minus 4z equals to 0, 3x minus 4y plus z equals to 7. These are the two planes given to you, and the plane एक line को represent करते हैं in the general form. 5x minus y, the second line is given as ये दो स्ट्रेट लाइंस गिवन है, दो स्ट्रेट लाइंस गिवन है एंड स्ट्रेट लाइंस गिवन इन जनरल फॉर्म. जनरल फॉर्म में लाइन की इक्वेशन गिवन है, दो प्लेन्स एक लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और आपसे कहा गया यू हैव टू प्रूव दैट दीज टू लाइंस आर पैरेलल लाइंस और यू हैव टू से दैट द क्वेश्चन कुड बी फाइंड आउट द एंगल बिटवीन द टू लाइंस. दोनों लाइंस के बीच में आपको एंगल फाइंड आउट करना है. ठीक, कन्वर्ट कर लीजिए इसको आप सिमेट्रिक फॉर्म में, दो लाइंस के बीच में एंगल फाइंड आउट करना. सो यस, these two lines given in the general form and you have to find out the angle between the two lines and you have to prove that these two lines are parallel lines. Let's say the direction cosines of that line is lmn. Lm as dc of the line, line के direction cosines है. ठीक, you are aware of two planes represents a line, line is contained in both the planes. So normal to the plane is going to be perpendicular to the line. Plane का जो normal होगा वो line के perpendicular होगा because that line is contained in the plane. So I'll be writing here 2l plus 3m minus 4n equals to 0. 3l minus 4m plus n equals to 0. Right? Cross multiplication method. It will be 3 minus 16. ठीक है ना, 3 minus 16, so 3 minus 16 minus 13, it will be minus 12 minus 2 minus 14 minus 8 minus 9 minus 17. So L by minus 13 equals to M by minus 14 equals to N by 17. These are nothing but the direction ratios of that line. Line के direction ratios मिल रहे हैं. बोले सर पॉइंट निकाल लेते हैं, लाइन को सिमेट्रिक फॉर्म में लिखना है, आवश्यक नहीं है. The reason is आपको तो एंगल बिटवीन द लाइंस पूछा गया है, तो there is no need to find out that point. आपको लाइन के डायरेक्शन रेशियोज मिल गए ना, that's enough. माइनस 13 माइनस 14 माइनस 17 या 13 14 17. ठीक है. लाइकवाइज हमने कहा जो सेकंड स्ट्रेट लाइन है जो इन दो प्लेन्स के थ्रू आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसके डायरेक्शन कोसाइंस एल डैश एम डैश एन डैश, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ दैट लाइन, it will be again the same concept that line is contained in both the planes, so normal to the plane is clearly perpendicular to that line. 5l dash minus m dash minus 3n dash equals to 0. L dash minus 7m dash plus 5n dash is equals to 0. L dash upon equals to m dash upon equals to n dash upon L dash m dash n dash. ये हो जाएगा minus 5 and then minus minus plus and again minus, minus 5 minus 21 minus 26. Okay, fine. It is minus 3 minus 25 minus 28 and n dash upon, using the cross multiplication method, what you are observing here, minus 35 plus 1 minus 34, right?
बात तो खत्म हो जाती है. यू आर गेटिंग द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ दैट सेकंड लाइन ऑल्सो. If you have to represent that line in symmetric form, one point is required. एक point required है, and you can take the intersection of that line with any of the planes, xy plane or yz plane or zx plane, but it is not required here. If angle between the lines is been asked, or if you have to prove that these two lines are parallel lines or perpendicular lines, that much information is good enough for us, right? Direction ratios हमें मिल गए, और यहाँ पे तो observation ही काफी है. -13, -14, -17, -26, -28, -34. These two lines are clearly parallel lines. ये दोनों lines कैसी lines होंगी? तो parallel lines हैं. ठीक है ना? Because their direction ratios are proportional. बात वहीं पे खत्म हो जाती है. And if angle is required, मान लीजिए parallel नहीं है, तो उस केस में ठीक है, cos theta is going to be a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 upon root over a1 square plus b1 square plus c1 square root over a2 square plus b2 square plus c2 square कर लेंगे. ठीक. We are discussing now an interesting concept, and that is about, as we have discussed, if you remember that we have discussed about the equation of plane is given. To find out the length of perpendicular, we are having the direct formula. प्लेन के ऊपर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर डायरेक्ट रिजल्ट आपके पास अवेलेबल है. Modulus of ax1 plus by1 plus cz1 plus d upon root over a square plus b square plus c square, as well as to find out the foot of perpendicular as well as image of that. We have discussed basic approach as well as shortcut approach both, right? And today we are going to discuss about foot of perpendicular, image of a point, as well as length of perpendicular from a point on a straight line given in definitely in symmetric form. If it is not given in symmetric form, we can convert it in the symmetric form, वो दिक्कत नहीं है. But we are going to discuss foot of perpendicular from a point on the line, image of a point on the line, length of perpendicular from a point on that line. ठीक है. पहले एक बार कंसेप्ट समझ लें हम. x1 y1 z1, let's say that's a point given to you. एक point है, known point है आपको, and there is a straight line given to you in the symmetric form. Symmetric form में line की equation भी given है आपको. x minus alpha upon L equals to y minus beta upon m equals to z minus gamma upon n. That is nothing but the equation of straight line given in the symmetric form. Clearly alpha, beta, gamma are nothing but the point on that line. Element could be direction, cosines or direction ratio of that line. Symmetric form में line की equation given है, right? Point is given to you. और मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, जो हमने अब तक के जो कंसेप्ट पढ़े उसके थ्रू आप जरूर बता सकते हैं. Foot of perpendicular from P point x1 y1 z1 on a straight line, image है ना, यहीं पे लिखना चाहूंगा. Foot of perpendicular as well as image of point x1 y1 z1 about the line. Third one is about length of perpendicular. ठीक है. As well as equation of perpendicular also. ये सारी बातें फाइंड आउट करना है. Point is given, line is given in the symmetric form, right? Foot of perpendicular, image, length of perpendicular and equation of perpendicular. ये चार फैक्ट्स रिक्वायर्ड हैं. बहुत बड़ा टास्क आपका कंप्लीट हो जाएगा और बहुत सिंपल सा कार्यक्रम है. That is the point given to you. ये पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया. लेट्स से इट मीट्स एट M. मुझे फुट ऑफ परपेंडिकुलर रिक्वायर्ड है. फुट ऑफ परपेंडिकुलर अवेलेबल होगा तो आई विल बी गेटिंग द इमेज P dash. Now it's about the line. Earlier we have discussed about the plane as well as length of perpendicular MP. ठीक. As well as equation of perpendicular also. ये चार फैक्ट्स. How can you find out that? Just think over that. कैसे find out कर सकते हैं आप? अब तक का जो डिस्कशन हुआ है वो काफ़ी है इसको सॉल्व करने के लिए. जस्ट थिंक ओवर दैट. तो कुछ टाइम दिया मैंने आपको सोचने का. एंड द अप्रोच इज
Simple approach is there. Equation of line given in the symmetric form, point given to you, foot of perpendicular. एक बात सिंपल है, पता है, अगर आप फुट ऑफ परपेंडिकुलर फाइंड आउट कर लोगे तो सारी बातें बन जाएगी, ये भी क्लियर है। क्योंकि अगर आपने फुट ऑफ परपेंडिकुलर फाइंड आउट कर लिया तो सेक्शन फॉर्मूले से इमेज आ जाएगा, और फुट ऑफ परपेंडिकुलर अवेलेबल है, पॉइंट इज अवेलेबल, तो डिस्टेंस फॉर्मूले से आप यू विल बी गेटिंग द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर आल्सो। और फुट ऑफ परपेंडिकुलर अवेलेबल है, पी पॉइंट अवेलेबल है, तो दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन की इक्वेशन आपको मिल जाएगी, सब कुछ मिल जाएगा, प्रोवाइडेड यू आर एबल टू गेट द फुट ऑफ परपेंडिकुलर। ठीक है, हमने क्या किया, लाइन की इक्वेशन गिवन है सिमेट्रिक फॉर्म में, एक जनरल अप्रोच समझा रहा हूं, विल बी टेकिंग सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दैट। हमने क्या किया, वी हैव टेकन इक्वल्स टू आर, वी हैव टेकन अ जनरल पॉइंट, एक जनरल पॉइंट जैसा हम अक्सर कंसीडर करते हुए आ रहे थे, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन सिमेट्रिक फॉर्म में, टेक इट इक्वल्स टू आर लिया आपने और एक जनरल पॉइंट लिखा, एंड लेट्स से दैट जनरल पॉइंट फॉर एनी वैल्यू ऑफ आर रिप्रेजेंट हियर द पोजीशन ऑफ एम, that will be LR plus alpha, MR plus beta, NR plus gamma, that's nothing but the general point। ठीक है, वो R की पर्टिकुलर वैल्यू के लिए वो M पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, M पॉइंट हमने फाइंड आउट कर लिया, फाइन। देखो P पॉइंट अवेलेबल है, M आ गया इन टर्म्स ऑफ R, हमने क्या लिखा, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ MP या PM जो भी कहें आप, डायरेक्शन रेशियो ऑफ MP, the direction ratio of MP x2 minus x1, y2 minus y1, z2 minus z1, that's nothing but LR plus alpha minus x1, MR plus beta minus y1, NR plus gamma minus z1, x2 minus x1, y2 minus y1, z2 minus z1, that will be the direction ratios of MP, MP डायरेक्शन रेशियोज होंगे। ठीक है, LMN, ये जो LMN है that is nothing but the direction ratio और डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन गिवन टू यू। ये MP के डायरेक्शन रेशियोज मिले और LMN जो है वो लाइन के डायरेक्शन रेशियोज हैं या डायरेक्शन कोसाइंस जो भी अवेलेबल है। एक सीधी सी बात है, MP is clearly perpendicular to the line, MP लाइन के परपेंडिकुलर है, MP लाइन के परपेंडिकुलर, तो MP लाइन के परपेंडिकुलर है A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल्स टू 0। भैया MP के डायरेक्शन रेशियो तो मिल ही गए आपको ऑलरेडी, इक्वेशन ऑफ लाइन इज ऑलरेडी देयर विथ यू, सो उस लाइन के डायरेक्शन रेशियो या डायरेक्शन कोसाइंस आपके पास है, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, सो यू आर गोइंग टू राइट देयर L टाइम्स, मैं केवल उतना सा लिख के छोड़ूंगा, LR प्लस अल्फा माइनस x1, चलिए लिख देते हैं, प्लस M टाइम MR प्लस बीटा माइनस y1 N टाइम्स NR प्लस गामा माइनस Z1 इज इक्वल्स टू 0। सिंपली A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल्स टू 0। दोस्तों, you will be getting the value of R from that, only unknown here is R। आपको R की वैल्यू मिलेगी, R की वैल्यू अगर मिल जाती है तो R की वैल्यू अगर अवेलेबल है, यू विल बी गेटिंग, R को प्लेस किया आपने, यू विल बी गेटिंग द कोऑर्डिनेट्स ऑफ M, M के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे, और M के कोऑर्डिनेट्स मिले दैट इज नथिंग बट द फुट ऑफ परपेंडिकुलर। M के कोऑर्डिनेट्स हैं, P के कोऑर्डिनेट्स हैं, सेक्शन फॉर्मूला इज देयर, यू कैन गेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P डैश जो कि इमेज के कोऑर्डिनेट्स होंगे। आ रहा है ना समझ में? M पॉइंट अवेलेबल है, P पॉइंट अवेलेबल है, डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करिएगा, यू विल बी गेटिंग द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। और M अवेलेबल है, P अवेलेबल है, तो इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर आ जाएगा। दो पॉइंट्स हमें गिवन है तो फिर क्या चाहिए, कुछ नहीं। x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इक्वल्स टू z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। तो सिंपल सी अप्रोच, फिर से देखिएगा क्या किया आपने, मतलब विद इन 2 स्टेप्स यू आर गेटिंग दैट, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, लेकिन आप एक साथ 4 क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं। यू हैव टेकन अ जनरल पॉइंट ऑन दैट स्ट्रेट लाइन, कीप दैट स्ट्रेट लाइन इक्वल्स टू r, यू हैव गॉट अ जनरल पॉइंट इन टर्म्स ऑफ m को मैंने लिखा इन टर्म्स ऑफ r, LR प्लस अल्फा, MR प्लस बीटा, NR प्लस गामा। M पॉइंट मिल गया आपको, P पॉइंट ऑलरेडी गिवन है,
एमपी के डायरेक्शन रेशियोज आ गए x2 minus x1, y2 minus y1, z2 minus z1. That line is that the given line है, this perpendicular to MP. Foot of perpendicular, length of perpendicular की बात कर रहे हैं तो perpendicular है. That we have used here, a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 equals to 0. Will be getting the value of r. और जहां आ रहा है हमारी बात बन गई. r को मिलते ही you will be getting m foot of perpendicular section फॉर्मूले से p डैश मिलेगा, इमेज होगा mp लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर और m और p अवेलेबल है तो इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर. दैट इज द अप्रोच. विल बी टेकिंग सम क्वेश्चन एंड बेस्ड ऑन दैट वी आर गोइंग टू सॉल्व दैट क्वेश्चन. Now the question is, you have to find out foot of perpendicular, then image, then length of perpendicular, and then equation of perpendicular. ठीक है ना, ये चारों फैक्ट्स हमें फाइंड आउट करना है फ्रॉम अ पॉइंट. From point, that point is 1,6,3 on the line, and the line is given in the symmetric form as x upon 1 equal to y minus 1 by 2 equals to z minus 2 by 3. So line given to you in the symmetric form, point is given and all four information is required. और आप easily बना लेना चाहिए ऐसा मुझे लगता है. That's the line given to you. That's the point P point 1,6,3. That is a straight line in the symmetric form. P point से perpendicular drop किया. Let's say it meets at M. Line given to you in the symmetric form, take a general point, keep that equals to r. r के बराबर रखा आपने. You will be getting the coordinates of m, r, 2r plus 1, 3r plus 2, r, 2r plus 1, 3r plus 2. ठीक है. You can find out the direction ratios of MP. MP के डायरेक्शन रेशियोज फाइंड आउट करोगे. x2 minus x1, y2 minus y1, z2 minus z1, r minus 1, 2r plus 1 minus 6, 2r plus 1 minus 6, 2r minus 5, 3r plus 2 minus 3, 3r minus 1. That's the direction ratio of MP. MP is perpendicular to the line. MP line के perpendicular है. Since MP is perpendicular to line A1 A2 plus B1 B2 plus C1 C2, line के डायरेक्शन रेशियोज हैं 1 2 3. MP के डायरेक्शन रेशियोज अवेलेबल हैं आपके पास अब A1 A2 plus B1 B2 plus C1 C2 equals to 0. What is the value of r? क्या वैल्यू मिल रही है आपको r की? 1. बहुत अच्छी बात है. As you are getting the value of r as 1, r की वैल्यू अगर 1 मिल रही है, you will be getting the coordinates of m. m के coordinates मिल जाएंगे आपको. r 2r plus 1, 3r plus 2. So it will be 1 3 5. बढ़िया. जो 1 3 5 है that is nothing but the foot of perpendicular. ये foot of perpendicular मिल गया आपको. To find out the image find out करना है. सेक्शन फॉर्मूला अवेलेबल है आपके पास में. ठीक है. लेट्स से कोऑर्डिनेट्स ऑफ इमेज के कोऑर्डिनेट्स को अगर मैं x1 y1 z1 से डिनोट करता हूं, अगर x1 y1 z1 से अगर डिनोट कर रहा हूं, so it will be x1 plus 1 divide by 2 is equals to 1. इमेज के कोऑर्डिनेट्स अगर x1 y1 z1 है, पॉइंट इज 163, जो मिडिल पॉइंट है वो फुट ऑफ परपेंडिकुलर होगा 135, तो x1 plus 1 by 2 equals to 1. क्लियर रहेगा ना. y1 plus
y1 plus 6 by 2 is equals to 3 and z1 plus 3 by 2 is equals to 5. That is nothing but the coordinates of image. Image के coordinates मिल जाएंगे आपको. सेक्शन फॉर्मूला कोई खास बात नहीं हुई. Then पॉइंट अवेलेबल है, m आपको मिल चुका है 135, p पॉइंट है आपके पास में 163, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, डिस्टेंस फॉर्मूला. ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूले से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर मिलेगा. लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर mp. What is that length of perpendicular? Distance formula रूट ओवर. बोले सर दो आप 135 और 163. So what is that value? है ना, 3 square 9 plus 4 13 रूट 13. ऑप्शन में 13 भी होगा, रूट 13 भी होगा, तो प्रॉपर्ली रूट 13 पे टिक करिएगा. लास्ट वन इज अबाउट द इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर. तो फाइन यार, इक्वेशन में कहाँ दिक्कत है? आपके पास पॉइंट 163 है, एम पॉइंट भी आपके पास है, इमेज का पॉइंट भी आपके पास है, आप लिख सकते हैं इक्वेशन ऑफ एमपी. आप उसको एमपी बोलो या पी पॉइंट की एम की जगह आप इमेज का कोऑर्डिनेट्स लो, तब भी इक्वेशन ऑफ लाइन तो सेम ही रहने वाली है. ठीक है ना. तो x माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1, y माइनस 6, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 163 एज वेल एज 135, 3 माइनस 6 इक्वल्स टू z माइनस 3 divided by 5 minus 3. ठीक है, that is nothing but the equation of perpendicular. ठीक है, तो केवल फुट ऑफ परपेंडिकुलर फाइंड आउट करने से, जो कि हम आसानी से कर पाए, हमने चारों बातें कैलकुलेट कर ली. फुट ऑफ परपेंडिकुलर, इमेज, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर. द अप्रोच इज वेरी सिंपल. ठीक. Now again you have to find out, all 4 questions are there. You have to find out foot of perpendicular, length of perpendicular, image, equation of perpendicular. Point is given to you as from, now the point is given to you as 1, 3, 7, and equation of line is given as x equals to 3 minus 5 lambda, y equals to 2 plus 5 lambda, z is equals to minus 7 plus 2 lambda, right? That is the equation of line given to you, in fact in the symmetric form. Symmetric form में line की equation given है, इसको properly arrange कर लेते हैं. It can be written as x minus 3 divided by minus 5 is equals to y minus 2 divided by 5 and z plus 7 divided by 2 is equals to lambda. ठीक. In fact it is given to you as general point. ये क्या गिवन है आपको? एक जनरल पॉइंट गिवन है ऑन द स्ट्रेट लाइन. स्ट्रेट लाइन के ऊपर एक जनरल पॉइंट गिवन है. ऐसा कह सकते हैं ना भाई, इसको हमने अरेंज कर लिया, तो दैट इज नथिंग बट द इक्वेशन ऑफ लाइन देयर पासिंग थ्रू द पॉइंट. विच पॉइंट? क्या इंफॉर्मेशन है? दैट्स इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन गिवन इन द सिमेट्रिक फॉर्म पासिंग थ्रू द पॉइंट 3, 2, minus 7 and having direction ratios as minus 5, 5 and 2. लाइन पास कर रही है 3, 2, -7 से और उसके डायरेक्शन रेशियोज हैं -5, 5 और 2. ठीक. सारी इंफॉर्मेशन फाइंड आउट करना है, कर सकते हैं. कीप दैट इक्वल्स टू आर या कीप दैट इक्वल्स टू लैम्डा, जो भी आप कहें, ऑलरेडी आपके पास में. ठीक है, ये पॉइंट है 1, 3, 7. This is M, which is nothing but the foot of perpendicular. This is P dash,
right? So x will be equals to 3 minus 5 lambda, y equals to 2 plus 5 lambda, z equals to minus 7 plus 2 lambda. That's a general point given to you on the straight line. ऐसा कह देते हम, that is nothing but the coordinates of m. जो दिया उसी को ले लिया जाए, कीप दैट इक्वल्स टू r लिखते हैं तब भी वैसी बात रहेगी. तो m के कोऑर्डिनेट्स अवेलेबल हैं. वी कैन राइट ऑफ mp के डायरेक्शन रेशियो लिख देंगे. x2 minus x1, y2 minus y1, z2 minus z1. It will be 3 minus lambda, 2 plus lambda minus 3, 1 plus 5 lambda, and it will be, yes, minus 14 plus 2 lambda. Clear? चेक भी करते जाइएगा. That is the direction ratio. Line is perpendicular to line MP is perpendicular to given line. So given line के perpendicular है, so A1 A2 plus B1 B2 plus C1 C2 equals to 0. कोई दिक्कत तो नहीं. 2 minus 5 lambda into minus 5 minus 1 plus 5 lambda into 5 plus minus 14 plus 2 lambda into 2 is equals to 0, and you will be getting the value of lambda. What that value of lambda is coming? Okay, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रहेगा. 43 by 54. 43 by 54 थोड़ी परेशानी तो आने वाली है. तो दिख गया हमें कि लेमडा की वैल्यू, बट ठीक है, लेमडा अगर आपको मिल गया, यू विल बी गेटिंग द कोऑर्डिनेट्स ऑफ m, और m के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे, मतलब इट इज नथिंग बट m के कोऑर्डिनेट्स अगर आपको मिल जाते, यू विल बी गेटिंग द फुट ऑफ परपेंडिकुलर. बोले सर कॉम्प्लिकेटेड सा हो रहा है. ठीक है, एलसीएम लेना पड़ेगा, सॉल्व करेंगे. ठीक, फुट ऑफ परपेंडिकुलर मिलेगा तो यू कैन फाइंड आउट इमेज, right? Equation of perpendicular as well as length of perpendicular. लेकिन since value of lambda is coming as 43 by 54, तो जहां भी calculations की बात आएगी वो tedious होगा. जब आप distance formula भी आप apply करोगे between the 2 points, even if you get the point 43 by 54 अगर आप रखते हैं, you will be getting the coordinates. ठीक है, आपको coordinates मिल जाएंगे. If length of perpendicular is required, it will be a tedious task, क्योंकि x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square plus z2 minus z1 whole square and square root of that. But approach is clear to you. अब एक और बात मैं आपसे कहूँ, सुनिएगा, and that is for competitive exam purpose. ये बहुत important point, competitive exam purpose बहुत help भी करेगा आपको. इसी क्वेश्चन की बात करें, और इस क्वेश्चन में मान लीजिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ही आ रहा है ये सवाल, और आपसे केवल लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर पूछा है, केवल लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर पूछा है फ्रॉम दैट पॉइंट ऑन दैट लाइन, तो आपको करना तो पूरा ही पड़ेगा. पहले फुट ऑफ परपेंडिकुलर तो फाइंड आउट करना पड़ेगा. जनरल पॉइंट लिया, डायरेक्शन रेशियो, देन फुट ऑफ परपेंडिकुलर A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल्स टू 0 करके R की वैल्यू या लेमडा की वैल्यू, एंड देन फुट ऑफ परपेंडिकुलर, एंड देन डिस्टेंस फॉर्मूला. और उसमें भी अगर फुट ऑफ परपेंडिकुलर दिक्कत वाला आ गया, जैसा कि यहाँ पे होने वाला है, तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर में काफी समय लगेगा. डेफिनेटली लगेगा, अगर आपने ट्राई किया होगा तो काफी टाइम लग रहा है उसमें, बिकॉज ऑफ कैलकुलेशन, नॉट बिकॉज ऑफ कंसेप्ट. कंसेप्ट तो बहुत सिंपल है और आप समझ में आ चुका है आप लोगों को. देयर इज अ शॉर्टकट टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर. केवल लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर के लिए है. तो एंड दैट इज ऑल्सो फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम पर्पस. ये भी मैं आपसे कहूँ, इसको आप अप्लाई कीजिएगा, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के हिसाब से उसको आप यूज करिएगा, क्योंकि अभी हमें क्या है कि लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर अगर रिक्वायर्ड, तो फर्स्ट यू विल हैव टू कैलकुलेट द फुट ऑफ परपेंडिकुलर एंड देन डिस्टेंस फॉर्मूला. बट आई एम गोइंग टू गिव यू न्यू अप्रोच टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर. नाउ लुक फॉर अ शॉर्टकट अप्रोच विदाउट फाइंडिंग आउट द फुट ऑफ परपेंडिकुलर. हाउ कैन यू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर? देखिएगा, इट इज MP स्क्वायर है ना, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर और लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर का स्क्वायर. ध्यान से देखिए, पहले
इक्वेशन ऑफ लाइन इज देयर इन द सिमेट्रिक फॉर्म, सिमेट्रिक फॉर्म में आप इसको प्रॉपर्ली अरेंज करके रखिएगा. इट मस्ट बी स्टैंडर्ड फॉर्म. -5, 5 and 2 are the direction ratio of that line. 1 upon -5 square plus 5 square plus 2 square. आप क्या करेंगे, डायरेक्शन रेशियोज हैं -5, 5, 2, उनके स्क्वायर्स का सम करके लिखा आपने, ठीक है. डायरेक्टली यू आर गोइंग टू गेट द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर. देन इक्वेशन ऑफ लाइन सिमेट्रिक फॉर्म, इसे 2/2 के डिटर्मिनेंट में लिख दीजिए. टू बाई टू के डिटर्मिनेंट में एक्सप्रेस कर दीजिए उसे. ठीक, जो गिवन लाइन है इन द सिमेट्रिक फॉर्म उसको 2/2 के डिटर्मिनेंट के स्क्वायर्स के सम के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर दीजिए. जैसा दिया वैसे ही लिख दिया गया, कुछ खास बात नहीं है. ये दो, ये दो और ये दो. ठीक, अब क्या करिएगा, पॉइंट क्या है, पॉइंट इज 1,3,7 जहां से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर रिक्वायर्ड है. x = 1, y = 3, z = 7. एक्स वाई जेड को 1, 3, 7 पुट कर दीजिए. MP² = 1 upon 25 + 25 50 + 4 54. 2/2 के डिटर्मिनेंट से x को 1 प्लेस किया आपने, 1 - 3, 2 y को 3 रखा, 1 5 3 - 2 1 5. वैल्यू ऑफ z 7, ठीक है ना. 1 3 7, 7 + 7 14, -2 - 5 and 14 2. 2/2 के डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना तो कोई बड़ी बात नहीं हुई. 2/2 के डिटर्मिनेंट्स को कैलकुलेट करना तो बड़ा सिंपल सा टास्क होगा. इट विल बी -10 + 5, तो -5 and square of that 25. इतना कर पाएंगे हम लोग. 70 - 2 68 and square of that -4 + 70, ठीक है ना, and square of that. दोस्तों इट इज नथिंग बट द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर. यू आर डायरेक्टली गेटिंग द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर. बस ये ध्यान रखिएगा कि जो कैलकुलेट किया आपने दैट इज MP², दैट इज नथिंग बट द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर स्क्वायर ऑफ दैट. तो फाइनली यू विल हैव टू टेक द स्क्वायर रूट ऑफ दैट. इस मेथड में फुट ऑफ परपेंडिकुलर की आवश्यकता ही नहीं है. डायरेक्टली यू आर गेटिंग द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर. सीधा सा कार्यक्रम. और ये तो समझाने के लिए किया है तो थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको. आप तो डायरेक्ट यहीं पे बात करिएगा, देखिएगा अदर बोर्ड पे, क्योंकि इसमें फुट अदरवाइज फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालने में टाइम लग रहा है आपको. देन यू हैव टू अप्लाई डिस्टेंस फॉर्मूला, उसमें कैलकुलेशन में दिक्कत आ रही है. लेकिन इसमें काम डायरेक्ट होगा, परफेक्ट. इक्वेशन ऑफ लाइन मस्ट बी देयर इन द सिमेट्रिक फॉर्म. सिमेट्रिक फॉर्म में लाइन की इक्वेशन होना चाहिए और पॉइंट आपके पास होना चाहिए. बस ये ध्यान रखिएगा कि उसमें फिर अपनी तरफ से हेरा फेरी मत कीजिए कुछ भी. राइट, इक्वेशन ऑफ लाइन इन सिमेट्रिक फॉर्म -5 5 2 dr है. ऑलवेज डू टेक केयर कि 1 upon -5² + 5² + 2². एक्चुअल में डायरेक्शन रेशियोज को डायरेक्शन कोसाइंस में कन्वर्ट करने के लिए किया जाता है, बट ठीक है. और 2/2 के डिटर्मिनेंट के टर्म में लिख दिया. जो इक्वेशन ऑफ लाइन है उसी को स्प्लिट करके लिखना है, कुछ ज्यादा सोचना नहीं है. 2-2 के पेयर्स में. और XYZ को जो भी पॉइंट गिवन है उससे पुट करना है बस. बट ये ध्यान रखिएगा कि डू नॉट फॉरगेट टू टेक द स्क्वायर रूट ऑफ दैट. डायरेक्टली यू आर गोइंग टू गेट द रिजल्ट. अभी क्या करिए आप, जो प्रीवियस क्वेश्चन है, प्रीवियस क्वेश्चन जहां पे हमने फुट ऑफ परपेंडिकुलर इमेज सब कुछ फाइंड आउट किया था, फाइंड आउट द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर यूजिंग दैट शॉर्टकट. प्रीवियस क्वेश्चन में
how can you find out the length of perpendicular using this shortcut? But again एक बात यहाँ कहना चाहूँगा और वो ये कि इसको बोर्ड एग्जाम के लिए ना करें, दैट इज ओनली फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम पर्पज. नाउ अगेन वी आर लुकिंग फॉर दैट शॉर्टकट मेथड to find out the length of perpendicular from the point. Given point is 2 comma minus 3 comma 1 on the straight line given in the symmetric form x plus 1 by 2 equals to y minus 3 by 3 equals to z plus 2 by minus 1. ठीक है, तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर लेट से उसको मैं पी क्यू स्क्वायर से डिनोट कर रहा हूँ. ध्यान रखिएगा इट इज स्क्वायर ऑफ लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, क्योंकि कई बार आपको आइडिया शॉर्टकट और आपने 25 फाइंड आउट किया, 25 ऑप्शन में भी मिलेगा और आपने 25 टिक किया, गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन में तो 25 भी होगा और 5 भी होगा. यू हैव टू टेक द स्क्वायर रूट ऑफ दैट. ये छोटी सी बात. फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज 1 अपॉन 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस माइनस 1 स्क्वायर. 2/2 के डिटर्मिनेंट के फॉर्म में आपको एक्सप्रेस करना. और एट द सेम टाइम अब एक बार आप अगर कंफर्टेबल हैं तो 2/2 के फॉर्म में तो लिखना ही है आपको. 2/2 के डिटर्मिनेंट के स्क्वायर के सम में लिखना है आपको. एक्स वाई जेड को भी पॉइंट से रिप्लेस करते हुए चलिए और टाइम से होगा. एक्स वाई जेड को भी आप पॉइंट से रिप्लेस कर दीजिए, लाइक एक्स इज 2, ठीक है ना. तो 2 + 1 3, 2 वैल्यू ऑफ वाई इज -3 -6 3, ठीक, प्लस -6 3 और z को रिप्लेस कीजिए 1 से. 1 + 2 3 -1. फर्स्ट और थर्ड 3 2. कितना आसानी से बात बनती है आप देखिएगा. खत्म. 2 स्टेप्स भी क्यों लिखे आप? एक्स वाई जेड को फर्स्ट स्टेप पे ही आप रिप्लेस कर दीजिए. 1 अपॉन 9 + 1 10 + 4 14. सिंपल 2/2 डिटर्मिनेंट्स आर देयर, है ना. 9 + 12 21 स्क्वायर प्लस 6 -9 -3 स्क्वायर प्लस -3 and -6 -9 स्क्वायर. अब क्या बचता है? ठीक है ना. विद इन 2 स्टेप्स यू आर गेटिंग द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर. और सबसे मजेदार बात है कि इसमें आपको देयर इज नो नीड टू टेक अ जनरल पॉइंट, डायरेक्शन रेशियोज, then applying the condition of perpendicular, value of r, foot of perpendicular and length of. बड़ा इतना स्टेप्स होंगी उसमें, अदरवाइज अगर हम बेसिक अप्रोच से करते हैं तो सबसे बच जाते हो आप. विद इन 2 स्टेप्स यू आर गेटिंग द रिजल्ट. 2 lines are said to be coplanar lines when 2 lines are said to be coplanar lines. कब कही जाती हैं 2 lines coplanar lines? 2 lines are said to be coplanar lines when those 2 lines are intersecting lines. या तो वो intersecting lines हो या फिर वो parallel lines हो. Parallel lines as well as intersecting lines comes in the category of coplanar lines. जहां तक कि coplanar lines में अगर parallel lines के concept को हम discuss करें तो parallel lines तो by observation you can decide कि ये coplanar होंगी. बोले सर बाय ऑब्जर्वेशन कैसे? बताइए कैसे? बाय ऑब्जर्वेशन ओनली यू कैन डिसाइड ओके दीज 2 लाइंस आर पैरेलल लाइन सो कोप्लेनर. कैसे? लाइन को आपने ऑब्जर्व किया और लाइन अगर सिमेट्रिक फॉर्म में, डायरेक्शन रेशियोज आपने चेक किए, डायरेक्शन रेशियोज प्रोपोर्शनल हैं तो पैरेलल होंगी, बात खत्म. ठीक. बट इफ 2 लाइंस आर इंटरसेक्टिंग लाइंस, अब यहां पर भी हम जैसे एज वी आर डिस्कस्ड प्रीवियसली फुट ऑफ परपेंडिकुलर फाइंड आउट किया, लेकिन फुट ऑफ परपेंडिकुलर के साथ में हमने इमेज फाइंड आउट किया, हमने लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फाइंड आउट किया, एज वेल एज वी हैव फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर. नाउ if 2 lines are intersecting lines, if 2 lines are coplanar lines, so first of all to find out the condition of 2 lines being coplanar lines, intersecting lines से उस बात की condition find out करेंगे. If 2 lines are intersecting lines, then equation coplanar lines, then equation of plane containing that 2 lines, 2 lines intersecting lines से उस बात की condition find out करना, then equation of plane find out करेंगे जो उन दोनों लाइन को contain किए हुए. ठीक. और तीसरी बात, 2 लाइंस इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं तो
पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दोस टू लाइंस, दोनों लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक। तो टू लाइंस गिवन टू यू इन द सिमेट्रिक फॉर्म, अब बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होगा ये। और एक और बात ये भी मैं आप पे सीधे सीधे नहीं बता रहा हूं, मैं आपको अलॉन्ग विद द डेरिवेशन हम काफी सारे रिजल्ट्स को हम देख रहे हैं, समझ रहे हैं। x माइनस अल्फा 1 अपॉन L1, और बहुत आसानी से समझ में भी आएगा, और बेसिक कंसेप्ट अगर आपके एक बार बन जाते हैं तो वो बहुत हेल्प करेगा। टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम एज वेल एज बोर्ड एग्जाम दोनों पर्पज से। x माइनस अल्फा 1 अपॉन L1 इक्वल्स टू y माइनस बीटा 1 अपॉन M1 इक्वल्स टू z माइनस गामा 1 अपॉन N1, दैट्स अ लाइन गिवन टू यू इन द सिमेट्रिक फॉर्म। Clearly alpha 1 beta 1 gamma 1 is the point given to you on that line, and L1 M1 N1 are the direction ratios or direction cosines, fine. Second line is there, x minus alpha 2 upon L2 equals to y minus beta 2 upon M2 equals to z minus gamma 2 upon N2, ये दो लाइन्स की इक्वेशन। सेकेंड लाइन, that second line is passing through the point alpha 2 beta 2 gamma 2 and having direction ratios or cosines as L2 M2 N2, ये दो लाइंस गिवन है आपको, and both the lines are given in terms of symmetric form, दोनों लाइंस सिमेट्रिक फॉर्म में गिवन है आपको, ठीक। इंटरसेक्टिंग लाइंस है भाई, अगर पैरेलल लाइंस है तो बाय ऑब्जर्वेशन यू कैन से ओके दीज टू लाइंस आर पैरेलल लाइंस, बाय ऑब्जर्वेशन ओनली इट इज सफिशिएंट। डायरेक्शन रेशियोज प्रोपोर्शनल होंगे, बात खत्म हो जाने वाली है। बट इफ टू लाइंस आर इंटरसेक्टिंग लाइंस है उस बात की कंडीशन फाइंड आउट करना, इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग दोस टू लाइंस फाइंड आउट करेंगे, एज वेल एज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दोस टू लाइंस। देखिएगा ये दो लाइंस, फर्स्ट वन सेकेंड वन, इक्वेशन ऑफ प्लेन containing first line, तो इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग द फर्स्ट लाइन को कंटेन किया, उससे मतलब ये हुआ कि पॉइंट अवेलेबल टू यू ऑन दैट लाइन इज अल्फा 1 बीटा 1 गामा 1। सो अगर लाइन प्लेन में कंटेंट है, लाइन अगर प्लेन में कंटेंट है तो जो पॉइंट है वो भी प्लेन को सेटिस्फाई करेगा, बिल्कुल करना चाहिए। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग या इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू वन पॉइंट क्या लिखते हो आप, a टाइम्स x माइनस x1 प्लस b टाइम्स y माइनस y1 प्लस c टाइम्स z माइनस z1 इक्वल्स टू 0। बढ़िया, a टाइम्स x माइनस अल्फा 1 b टाइम्स y माइनस बीटा 1 प्लस c टाइम्स z माइनस गामा 1 is equals to 0। इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट अल्फा 1 बीटा 1 गामा 1, यार लाइन की इक्वेशन जो प्लेन की इक्वेशन जो फर्स्ट लाइन को कंटेन कर रही है, इसका सीधा सा मतलब है कि पॉइंट सेटिस्फाई करेगा प्लेन को, कर दिया। अब सेकेंड लाइन इज ऑल्सो ऑन द सेम प्लेन। अगर दो लाइन्स इंटरसेक्टिंग लाइन्स हैं, इफ टू लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग लाइन्स, then those two lines must be coplanar, and must be coplanar मतलब किसी एक प्लेन के ऊपर होंगी, और प्लेन के ऊपर होंगी वो फाइंड आउट करना है मुझे। तो ये बात भी ठीक है कि अल्फा 2 बीटा 2 गामा 2, सेकेंड लाइन भी तो सेकेंड लाइन भी प्लेन के ऊपर है, तो अल्फा 2 बीटा 2 गामा 2 also satisfies the equation of plane। राइट, एक्स वाई जेड को अल्फा 2 बीटा 2 गामा 2 से रिप्लेस कर दीजिए। लेट्स से इस इक्वेशन को मैंने ए से डिनोट किया, ए टाइम्स अल्फा 2 माइनस अल्फा 1 बी टाइम्स बीटा 2 माइनस बीटा 1 प्लस सी टाइम्स गामा 2 माइनस गामा 1 इज इक्वल टू 0। लिख सकते हैं अल्फा 2 माइनस अल्फा 1 बीटा 2 माइनस बीटा 1 गामा 2 माइनस गामा 1, ठीक। Now equation of plane containing both the lines, since those two lines are intersecting lines, दो lines है वो intersecting lines है, that is the plane, this is the plane which is containing those two lines। ये एक plane, ये दो lines है जो इन दोनों
को कंटेन किए हुए, तो ये बात तय है कि जो प्लेन का नॉर्मल होगा दोनों को परपेंडिकुलर होगा। भाई प्लेन की इक्वेशन जब मैं लिखता हूं तो प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज के बारे में मेरे पास इंफॉर्मेशन होती है। इफ टू लाइंस आर इंटरसेक्टिंग लाइंस, इफ टू लाइंस आर देयर ऑन द सेम प्लेन, तो जो प्लेन का नॉर्मल है वो दोनों लाइंस के परपेंडिकुलर होगा। तो यस, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल्स टू 0। सो a1 a2 प्लस b1 b2, बोलिएगा क्या इक्वेशन आ जाएगी आपके सामने। लेट्स से इसको मैंने b से डिनोट किया। देन ए बी सी प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज हैं, और लाइन के डी आर या डी सी जो भी आप कहें, L1 M1 N1, AL1 प्लस BM1 प्लस CN1 इक्वल्स टू 0। लेट्स से इसको मैंने सी इक्वेशन से डिनोट किया। प्लेन सेकेंड लाइन के भी परपेंडिकुलर है, AL2 प्लस BM2 प्लस CN2 इज इक्वल्स टू 0। यहां तक बात समझ में आती है क्या? इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू अल्फा 1 बीटा 1 गामा 1, अल्फा 2 बीटा 2 गामा 2 इज ऑल्सो ऑन द सेम प्लेन एज दोस टू लाइंस आर इंटरसेक्टिंग लाइंस या कोप्लेनर लाइंस है, तो दोनों पॉइंट सेटिस्फाई करेंगे। दूसरा भी सेटिस्फाई कर दिया, प्लेन का नॉर्मल दोनों लाइंस के परपेंडिकुलर होगा, दैट वी हैव यूज्ड हियर। ठीक, अब हमारी रिक्वायरमेंट है कंडीशन फॉर, सुनिएगा बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हम डिराइव कर रहे हैं और ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। और बेसिक अप्रोच से डेरिवेशन, डायरेक्टली फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूं मैं यहां पर। कंडीशन ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस, या कंडीशन ऑफ कोप्लेनर लाइंस, जो भी आप कहें। इंटरसेक्टिंग लाइंस या कोप्लेनर लाइंस की कंडीशन। फॉर दैट क्या किया आपने, ए बी सी डी, देखो इन दोनों को सी और डी को आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लगा के सॉल्व कर सकते हो, करते हैं। ए अपॉन बी अपॉन सी अपॉन, और ए अपॉन बी अपॉन सी अपॉन जो वैल्यूज मिलेंगी आपको ए बी सी की, इफ यू कीप दैट इन बी, उसको बी में डाल दीजिए, यू विल बी गेटिंग द कंडीशन ऑफ टू कोप्लेनर लाइंस। लेकिन उतना सब करने की आवश्यकता नहीं, यू आर फेमिलियर विद डिटर्मिनेंट्स। तो ध्यान से सुनिएगा, एलिमिनेशन ऑफ ए बी सी फ्रॉम इक्वेशंस बी सी एंड डी। बी सी डी इक्वेशन से हमने ए बी सी को एलिमिनेट किया। देखिएगा कैसे, सीधी सी बात, अल्फा 2 माइनस अल्फा 1, बीटा 2 माइनस बीटा 1, गामा 2 माइनस गामा 1, राइट। L1 M1 N1 and L2 M2 N2, that determinant equals to 0, that is the condition for two intersecting lines। खत्म, यूजिंग द डिटर्मिनेंट्स। बोले सर कैसे आ गया, क्यों भैया? सी और डी में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लगाया आपने, राइट, और एबीसी की वैल्यू को आपने बी में रख दिया, तो यही तो बात लिख रहा हूं मैं, दैट इज नथिंग बट द एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स। ठीक, सीधे सीधे बात बन जाएगी। टू लाइंस आर गिवन टू यू, और प्रूव करना है आपको इंटरसेक्टिंग लाइंस से। अगर ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 के बराबर आ गई तो आप कहेंगे इंटरसेक्टिंग लाइंस। If two lines are given intersecting lines, if two lines are coplanar lines, find the value of k या find the value of lambda, ये रिजल्ट है। और कितना सिंपल सा रिजल्ट, सुनना ध्यान से। अल्फा 1 बीटा 1 गामा 1 is a point on the first line, अल्फा 2 बीटा 2 गामा 2 is a point on the second line। First row of the determinant is what? अल्फा 2 minus अल्फा 1, बीटा 2 minus बीटा 1, गामा 2 minus गामा 1। सेकेंड रो L1 M1 N1, ये रहा L1 M1 N1। थर्ड रो L2 M2 N2। ज्यादा क्या सोचना, राइट। और एक और पॉइंट, इक्वेशन हमने कहा कि इंटरसेक्टिंग तो है, चलो ठीक बात है। फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ प्लेन ऑल्सो, फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग दीज टू इंटरसेक्टिंग लाइंस। फॉर दैट कोई इशू नहीं है, इक्वेशन ऑफ प्लेन
containing 1 and 2, containing 1 and 2 which are intersecting lines, दो intersecting lines को contain किए हुए जो plane की equation है। बोले सर अब क्या करना? देखो भैया, C और D में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लगाया, A अपॉन B अपॉन C अपॉन, जब इंटरसेक्टिंग लाइंस फाइंड आउट करना थी तो A B C को B में प्लेस कर दिया था। अभी मुझे प्लेन की इक्वेशन फाइंड आउट करना है तो C और D में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लगाया, A B C की जो वैल्यूज आई उसको A में प्लेस कर दिया तो प्लेन मिल जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से जब सॉल्व किया, यू गॉट द वैल्यू ऑफ A अपॉन B अपॉन C अपॉन, इफ यू पुट इट इन इक्वेशन B इक्वेशन, कंडीशन मिलेगी आपको, और अगर उसको A इक्वेशन में पुट करोगे तो प्लेन की इक्वेशन मिल जाएगी। ठीक, बोले सर क्या करा जाए? आसान काम किया जाए, एलिमिनेशन ऑफ A B C फ्रॉम इक्वेशन, A इक्वेशन, C इक्वेशन एंड D इक्वेशन। दोस्तों इट इज नथिंग बट बड़ा सिंपल सा कार्यक्रम, x माइनस अल्फा 1, y माइनस बीटा 1, z माइनस गामा 1, L1 M1 N1, L2 M2 N2, that determinant is equal to, खत्म। That's the equation of plane containing two coplanar lines। कितना सिंपल। इधर देखो, ये दो लाइंस गिवन है सिमेट्रिक फॉर्म में, x माइनस अल्फा 1 फर्स्ट रो क्या लिया है मैंने, x माइनस अल्फा 1, y माइनस बीटा 1, z माइनस गामा 1, सेकेंड रो में L1 M1 N1, थर्ड रो में L2 M2 N2, खत्म। दैट इज नथिंग बट द इक्वेशन ऑफ प्लेन। बोले सर x माइनस अल्फा 2, y माइनस बीटा 2, z माइनस गामा 2 ले सकते हैं क्या? जरूर ले सकते हैं, आसानी से बात बन जाती है। शॉर्टकट्स, ट्रिक्स या ट्रिकें, जो भी आप कहें, डायरेक्ट काम होगा यहां पर। बट कैसे आ गया? दैट डेरिवेशन इज देयर। ऑल्सो लुक फॉर हाउ टू फाइंड आउट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब जैसे हमने कहा कि फर्स्ट कंडीशन दैट हाउ टू फाइंड आउट द कंडीशन फॉर टू लाइंस टू बी इंटरसेक्टिंग लाइंस, डिटर्मिनेंट फॉर्म में हमने एक्सप्रेस किया। सेकेंडली वी हैव डिस्कस दैट इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग द टू लाइंस, एंड थर्ड वन इज if two lines are intersecting lines then how to calculate the point of intersection। भाई intersecting lines है तो point of intersection बताओ। then the approach is, क्योंकि एक बार हम concepts डिस्कस कर लें, will be solving the problems based on that। दोनों लाइन सिमेट्रिक फॉर्म में गिवन है, जनरल पॉइंट लिया आपने फर्स्ट लाइन पर और जनरल पॉइंट लिया आपने सेकेंड लाइन के ऊपर, सीधी सी बात है। लेट्स से दैट पॉइंट इज P पॉइंट, L1 R1 plus alpha 1, general point on that line, M1 R1 plus beta 1, N1 R1 plus gamma 1। Q point is L2 R2 plus alpha 2, M2 R2 plus beta 2 और N2 R2 plus gamma 2। ये P पॉइंट और Q पॉइंट जनरल लिखा हमने। अब दो लाइंस अगर इंटरसेक्टिंग लाइंस है, इफ टू लाइंस आर इंटरसेक्टिंग लाइंस, तो फॉर सम वैल्यू ऑफ R1 एंड R2, R1 और R2 के लिए, R1 और R2 की किन्हीं वैल्यूज के लिए, फॉर सम वैल्यू ऑफ R1, किसी वैल्यू ऑफ R1 और किसी वैल्यू ऑफ R2 के लिए, दोनों लाइंस के लिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो सेम ही आएगा, और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सेम आएगा। फॉर दैट L1 R1 plus alpha 1 equals to L2 R2 plus alpha 2, सेम पॉइंट होगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो इक्वेट कर दिया। M1 R1 plus beta 1 equals to M2 R2 plus beta 2, N1 R1 plus gamma 1 is equals to N2 R2 plus gamma 2। ठीक, किन्हीं भी दो इक्वेशंस को सॉल्व कर लीजिए। These three equations are there, solve any two of the three equation, R1 और R2 दो unknown है, you will be getting any two equations in terms of R1 and R2,
अगर आप उसको सॉल्व करोगे R1 और R2 की वैल्यूज मिल जाएंगी आपको, और R1 और R2 की वैल्यूज तीसरे में भी पुट कर दीजिएगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस निकल आएंगे आपके। एज वेल एज एक और बात बताता हूं मैं आपको, ठीक है ना, जनरल पॉइंट ऑन फर्स्ट लाइन, जनरल पॉइंट ऑन सेकेंड लाइन, टू लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग लाइन्स, तो इक्वेट कर दिया आपने, फॉर सम वैल्यू ऑफ R1 एंड R2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मस्ट बी सेम। So R1 R2 के टर्म्स में 3 लीनियर इक्वेशंस आर देयर, सॉल्व एनी 2 ऑफ द 3 इक्वेशंस, यू विल बी गेटिंग R1 एंड R2, उसको थर्ड में प्लेस कर दीजिए, वो तो ओवरऑल आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएंगे। और एक और बात है कि यहां से आप ये प्रूव भी कर सकते हैं कि दो लाइंस इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं। सर कैसे? अगर R1 R2 जो आपने किन्हीं भी दो लाइंस को सॉल्व किया और आपको R1 R2 को जो मिला है, या जो R1 R2 के टर्म्स में 3 लीनियर इक्वेशंस हैं, आपने किन्हीं दो एक को सॉल्व किया, आपको R1 R2 की वैल्यू मिली, अगर थर्ड को सेटिस्फाई कर जाता है, आपने R1 रखा और R2 रखा और सेम पॉइंट आ जाता है, तो इंटरसेक्टिंग है, ऐसा भी बोल सकते हैं हम। इससे भी आप प्रूव कर सकते हैं कि दोस टू लाइंस आर इंटरसेक्टिंग लाइंस। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो आएगा ही आएगा, ठीक, बट बेहतर होता है कि हम जो डिटर्मिनेंट के थ्रू जो हम सॉल्व करते हैं, क्योंकि इसमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की जरूरत, इसके लिए हमें सॉल्व करना पड़ेगा लीनियर इक्वेशन, ठीक है ना, बट टू फाइंड आउट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इतना करना पड़ेगा, ठीक। Two straight lines are there, and those two lines are given in symmetric form. First of all, you have to verify that okay, these two lines are intersecting lines, whether those two lines are intersecting lines or not, intersecting lines है या नहीं है। If those two intersecting lines, if those two lines are intersecting lines, then equation of plane containing those two lines, दूसरी बात। And if two lines are intersecting lines, third one, how can you find out the point of intersection, तीसरी बात। तीनों डिस्कस कर रहे हैं। For the first one, condition for coplanarity, two lines are said to be coplanar if those two lines are intersecting lines or they are पैरेलल लाइंस, सीधी सी बात। तो वेरीफाई करना है कि यार इंटरसेक्टिंग है या नहीं है, डिटर्मिनेंट फॉर्म में अल्फा 2 माइनस अल्फा 1, बीटा 2 माइनस बीटा 1, गामा 2 माइनस गामा 1। व्हाट इज दैट पॉइंट ऑन दिस लाइन? इस लाइन के ऊपर पॉइंट क्या है? व्हाट इज दैट पॉइंट देयर? 1, 2, 3। डायरेक्शन रेशियोज हैं 2, 3, 4। पॉइंट अवेलेबल ऑन द सेकेंड लाइन 4, 1, 0। डायरेक्शन रेशियोज 5, 2, 1। अल्फा 2 माइनस अल्फा 1, 4 माइनस 1, 1 माइनस 2। आपको दिक्कत लगती है तो पहले आप एक बार पॉइंट सेपरेटली लिख लीजिएगा और फिर अल्फा 2 माइनस अल्फा 1 वाली बात लगाइए, ठीक। 4 माइनस 1, 1 माइनस 2, 0 माइनस 3, 2, 3, 4, दैट्स द सेकेंड रो। and 5, 2, 1। determinant calculate कर लेते हैं। yes, we know how to calculate the determinant, that will be equals to, calculate कर लीजिए please, calculate the determinant। 3 minus 1 minus 3, 2, 3, 4, 5, 2, 1। इस determinant को calculate कर लीजिए। 3 times 3 minus 8 plus 1 times 2 minus 20 minus 3 times 4 minus 15। Is it coming 0? चेक करिए, आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। minus 5 into 3 minus 15 minus 18, 36, what is that? 33, ठीक, बन रही है, बात बनती है। इट इज कमिंग 0। इफ इट इज कमिंग 0, those two lines are clearly coplanar lines।
डिटर्मिनेंट तो आप कर पाएंगे ना, मेरे को नहीं करना चाहिए था, कर दिया बात अलग है, बट बहुत छोटी सी बात। अगर ये नॉट इक्वल टू 0 है इसका मतलब है कि दोनों लाइंस इंटरसेक्टिंग लाइंस नहीं है, ठीक। देन इक्वेशन ऑफ प्लेन containing two lines, those can be written as x minus 1, y minus 2, z minus 3, 2, 3, 4, 5, 2, 1. Keep that determinant equals to 0. You will be getting the equation of plane. Simple. ज़्यादा सोचना ही नहीं है। x minus 1, y minus 2, z minus 3 first row of that determinant, 2, 3, 4 second row of that determinant, and 5, 2, 1 that is the third row of that determinant. You will be getting the equation of plane. Determinant solve कर लेंगे आप। To find out the point of intersection, दो lines अगर intersecting lines से point of intersection, keep that equals to r1. Keep that second line equals to r2. 2r1 plus 1, 3r1 plus 2, 4r1 plus 3, 5r2 plus 4, 2r2 plus 1 and r2. ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन या इन टर्म्स ऑफ r1 एंड r2 आपने जनरल इक्वेशन की बात कर ली। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए इक्वेट करिए 2r1 plus 1 equals to 5r2 plus 4, 3r1 plus 2 equals to 2r2 plus 1, राइट। दो लाइंस इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं वो तो तय बात है, ये तो हम प्रूव कर चुके हैं। 4r1 plus 3 equals to r2। कोई भी दो लीनियर इक्वेशंस लीजिए आप इन टर्म्स ऑफ r1 एंड r2, एनी टू ऑफ द थ्री लीनियर इक्वेशन आप सॉल्व कर सकते हैं। टेक फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ r1 एंड r2, देन यू विल बी गेटिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। कर लीजिए जरा, बताइए मुझे व्हाट वैल्यू यू आर गेटिंग फॉर r1 एंड r2 प्लीज, एनी टू। So yes, on solving any two of the linear equation, you are getting the value of r1 minus 1 as well as r2 is also coming as minus 1। r1 और r2 दोनों की वैल्यूज -1 आ रही है और r1 और r2 दोनों की वैल्यूज अगर -1 आ रही है तो यू कैन सेटिस्फाई दैट इन द थर्ड वन। -4 + 3 दैट इज -1 इक्वल्स टू -1 बराबर है। तो इंटरसेक्टिंग प्रूव करना है तो दिस कुड आल्सो बी वन ऑफ द अप्रोच। जनरल पॉइंट आपने लिया r1 के टर्म्स में, जनरल पॉइंट लिया आपने सेकंड लाइन पर इन टर्म्स ऑफ r2, इक्वेट किया r1 r2 की वैल्यू फाइंड आउट करी किन्हीं भी दो को सॉल्व करके, अगर तीसरी को सेटिस्फाई कर जाती है तो इंटरसेक्टिंग है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो आ ही जाएगा। आपने जब इक्वल्स टू -1 कहा है तो यू विल बी गेटिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो इधर रखो या इधर रखो, इट विल रिमेन सेम। क्या आ रहा है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन? -1 देन अगेन -1 है ना, एंड अगेन -1, -1 दैट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक, कितना आसानी से काम हो जाता है। तो तीनों बातें हो गई यहां पर, कंडीशन फॉर कोप्लेनर लाइंस, इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग दोज टू लाइंस एंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। Two lines are given. We are taking a screening question. IIT 2004 में पूछा हुआ सवाल, intersecting lines है, and you have to find out the value of k. If these two lines are intersecting lines, you have to find out the value of k. Screening का सवाल, डायरेक्ट अप्रोच है अभी तो आपके पास में। दोनों लाइन सिमेट्रिक फॉर्म में गिवन है, α2 - α1, β2 - β1, γ2 - γ1, L1 M1 N1 और L2 M2 N2. It is going to be point on that line is 1, -1, 1, 3, k, 0, 3 - 1, k + 1, 0 - 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1,
कीप दैट डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 0, डिटर्मिनेंट को 0 पर रख दीजिए, k की वैल्यू मिलेगी आपको। डिटर्मिनेंट आप जरूर सॉल्व कर लेंगे। व्हाट इज दैट वैल्यू? 9/2, सिंपल।